लेट्स स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है ट्रेड एंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट करता है इंडियाज़ RCEP माइनस चाइना स्ट्रैटेजी। इंडिया की RCEP माइनस चाइना स्ट्रैटेजी क्या है, इसके बारे में डिस्कशन दिया। अब RCEP होता क्या है? ये बेसिकली रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। So India has basically strategically managed its trade relations following 2019 withdrawal from the RCEP, RCEP। तो गोल क्या है? गोल ये है इंडिया का टू गेन द बेनिफिट्स ऑफ द RCEP ट्रेड ब्लॉक विदाउट द रिस्क ऑफ अ डायरेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना which could lead to a flood of cheap Chinese manufactured goods. Achievement की अगर बात की जाए तो with a new FTA concluding with New Zealand, India will have individual trade deals with 14 out of 15 RCEP members. की एडवांटेज की बात अगर की जाए, बायलैटरल्स deals allow India to exclude sensitive sectors and maintain tariff control, whereas the RCEP's integrated structure would have provided an indirect backdoor for Chinese goods through other member countries. Existing framework की अगर बात की जाए, India and China still have trade under the Asia Pacific Trade Agreement, APTA, but this is much narrower preferential pact rather than a full scale FTA. तो RCEP काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक हेडविंड्स, US रिलेशंस की बात की जाए इस कंटेक्स्ट में, तो टेंशंस हैव राइजन due to the President Trump's Liberation Day policies, including 25% tariff on the Indian imports and penalty for India's continued purchase of Russian oil. Global Shifts 2025 saw a shock and surprise foreign policy landscape with right wing shifts in Europe and Japan, and ongoing stability in India's neighborhood, Bangladesh and India. Regional wins, despite challenges, India improved ties with Canada, attending the G7 outreach, and maintained a steady diplomatic course with Taliban regarding the humanitarian aid. एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन्स के अंडर जो टॉपिक्स हैं, दिस इज़ अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स। इंडियाज़ ऑयल सोर्सिंग हैज़ शिफ्टेड ड्रास्टिकली ड्यू टू द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। अगर 2005 से पहले की बात करें तो 70% ऑफ द ऑयल केम फ्रॉम द वेस्ट एशिया लाइक सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, UAE एंड कुवैत. Iran shift due to UN sanctions in 2010, India's Iranian oil share dropped from over 10% to roughly 6.2%. तो यूएन सैंक्शंस पर रहे थे ईरान पे, उसकी वजह से इंडिया का जो ईरानियन ऑयल शेयर था वो ड्रॉप हो गया था. रशियन सर्ज, दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसेंट चेंज. 2021 टू 22 की अगर बात की जाए तो रशिया अकाउंटेड फॉर अराउंड लेस देन 2% ऑफ द इम्पोर्ट्स, एंड 2024 से 25 की बात की जाए तो ये जो शेयर है ये सर्ज हो गया 35.8% का. करंट स्टेटस, मॉस्को हैज़ नाउ प्रोवाइडेड 1/3 of the India's total crude basket, driven by discounted prices following the Western sanctions on Russia. Renewable energy sector, future tech, energy storage and green hydrogen are identified as the changers for India's RE ecosystem by 2030. कैपेसिटी गोल की अगर बात की जाए तो इंडिया का एम है around 500 gigawatt of non-fossil fuel capacity by 2030, requiring an investment of approximately rupees 30 lakh crore. Decarbonization, green hydrogen is a critical for hard to abate sectors like the steel, cement and heavy transport. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है दिस इज़ क्रूशल एंड क्रिटिकल फॉर हार्ड टू अबेट सेक्टर्स लाइक द स्टील, सीमेंट एंड हैवी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़. लास्टली साइंस एंड हेल्थ के ऊपर है. जेनेटिक्स में आपका क्रोमैटिन फिजिक्स की बात की जा रही है, वेयर रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द क्रोमैटिन जो कि डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. क्रोमैटिन होता क्या है, डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता क्या है. सो दिस कैन फ्लिप बिटवीन अ फ्लूइड एंड सॉलिड लाइक स्टेट बेस्ड ऑन द स्पेसिंग ऑफ न्यूक्लियोजोम्स. न्यूक्लियोजोम्स क्या होते हैं, उसमें स्पेसिंग का पैटर्न क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है. The mechanism, a change of just 5 DNA letters base pairs in the linker DNA can alter the entire structural state, affecting how genes are assessed and read. Public health concerns, oral cancer.
ये पब्लिक हेल्थ बेसिकली दिस इज़ बेस्ड ऑन मोर सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट कि एक स्टडी इंडिया में हुई है जो कि रिवील करती है कि अगर लो अल्कोहल इनटेक होता है सिग्निफिकेंटली, तो ये कहीं ना कहीं प्यूसिल मोसोसा मुकोसा कैंसर जो है बीएमसी इन मैन का रिस्क जो है इंक्रीज करता है. सो दिस रिस्क इज कंपाउंडेड व्हेन अल्कोहल इज कंबाइंड विद टोबैको यूज़. तो टोबैको के साथ साथ जो लोग लेते हैं ना अल्कोहल, तो वो रिस्क इंक्रीज इन्हांस हो जाता है. हेल्थ केयर फंडिंग इंडियाज हेल्थ बजट रिमेन्स बिलो 2% ऑफ द जीडीपी, फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट ऑफ 2.5%. ड्रग क्वालिटी की अगर बात की जाए, सो देर इज़ अ प्रेसिंग नीड फॉर बेटर क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मा फॉलोइंग द इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग कंटेमिनेटेड कफ सिरप. ये कफ सिरप का नाम है, विच हैज़ लेड टू द चाइल्ड फर्टिलिटीज़. AMR in TB, antimicrobial resistance is a rising threat, and while India aim to eliminate TB by 2025, the goal remains a pious dream due to the स्केल ऑफ चैलेंज. अब क्या चैलेंज है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ये टीबी में आपका यूटीआई जो है इसमें बहुत कॉमन हो जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी दिस इज़ अ वेरी पायस ड्रीम, और मतलब इसे काफ़ी डिफ़िकल्ट समझा जा रहा है. चैलेंज है एक तरीके से ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बीट करना. Economic outlook for 2026. The RBI pegs growth at 7.1% for 2025 to 26. फिस्कल पॉलिसी की अगर बात की जाए तो 2025 बजट ने फोकस किया ज़्यादातर ऑन रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन्स फॉर द टैक्स पेयर्स एंड इंक्रीजिंग द डिस्पोजेबल इनकम. स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए, मार्केट्स हैव बीन वोलेटाइल और रॉकी ईयर, इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंटरनेशनल geopolitical shifts and domestic policy changes. सो ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ईयरली बेसिस पे दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बजट भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. हियर आई एंड माई एनालिसिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.